15.5 Law of Demand. We have already studied about the effect of change in the price or a demand for a commodity. किस तरीके से प्राइस चेंज होने की वजह से कमोडिटी की डिमांड पे किसी भी कमोडिटी की डिमांड पे अफेक्ट होता है, ये हमने चीजें के बारे में देखा. The law of demand explain the relationship of price of a commodity and the quantity demanded. ये दोनों का रिलेशन बताया. When all other factors affecting demand remains constant, the law of demand says the other things remain same. बाकी सारी चीजें सेम रहती है. Quantity demanded of commodity is inversely related to its price because of price उसकी डिमांड में अफेक्ट होता है. In other words, demand for a commodity rises. किसी भी कमोडिटी का डिमांड क्या है? बढ़ता है. Rises when the price falls. जब उसकी प्राइस कम होती है, ठीक है. And its demand falls और उसकी डिमांड फॉल होती है कब? When the price rises. जब उसकी प्राइस बढ़ती है, ठीक है. कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, ठीक है. जैसे जैसे प्राइस कम हो वैसे डिमांड बढ़ गई. This is what inverse relationship between both of them. Factors remain unchanged. अब लॉ ऑफ डिमांड can be better explained with the help of table. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है 15.1. ये ग्राफ यहाँ पे बताया हुआ है. यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, quantity demanded in units and price 0, 2, 4, 6, 8, 10. ये quantity demanded है और यहाँ पे प्राइस भी दी हुई है. Let us understand this with the table. जब प्राइस 1 होती है तो उसकी डिमांड कितनी होती है? 10. जब 1 थी उसकी डिमांड थी 10. जब 2 हुई तो उसकी डिमांड क्या हुई? 8 हो गई. जब 2 हुई, ठीक है, जब 2 हुई उसकी डिमांड क्या हो गई? 8 हो गई. कम हुई जब 3 उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड और कम हो गई, 6 हो गई. जब 3 हुई तो उसकी डिमांड और कम हो गई, 6 हो गई. फिर 4 पे 4 रही और 5 पे 2 हुई. जब उस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड प्राइस 5 हुई तो उसका डिमांड कितना हो गया? 2 रह गया. दिस इज व्हाट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. That is why the demand curve slopes downward from the left to right. इसलिए लेफ्ट से राइट में डिमांड नीचे डाउनवर्ड्स में है, ठीक है. स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो 15.1 में बताया. डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व shows that an inverse relationship of price and quantity demanded for a commodity. Assumptions of law of demand. इसके कुछ assumptions देखते हैं. In the law of demand, all other factors except price of the commodity are assumed to be the constant. Therefore, we used to phase other things remaining same. This phase is used to cover the following assumptions on the which the law is based. Prices of the substitute goods do not change. Substitute goods देखे थे हमने, वो उसकी प्राइस चेंज नहीं होती है. Prices of complementary goods भी हमने देखे थे, उसकी प्राइस भी सेम नहीं होती है. Do not change नहीं होती है. Income of the buyer remains the same. Income of buyers में क्या रहती है? Remains same. There is no change in the taste and preferences. Taste और preferences में भी कोई change देखने मिलता नहीं है. Reasons for operation of law of demand. Reasons देखते हैं. Try to explain why does the consumer purchase more quantity of a commodity at a lower price and less of it at a higher price, or why does the law of demand operate? Example, why does the demand curve slopes downward from left to right? The main reason for the operation law of demand are law of diminishing marginal utility. देखते हैं. As we have studied earlier, law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. कम होता जाता है. The consumer will be ready to pay more for those units which provides him more utility. ठीक है, जिसमें ज़्यादा satisfaction मिल रहा हो, and less for those which provide him a less utility. उस चीज़ों के लिए हम लोग डेफिनेटली ज़्यादा ही पे करते हैं. जो हमें ज़्यादा सर्विसेज, जो हमें ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, हम लोग ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए जो भी अमाउंट हो वो पे करने के लिए रेडी होते हैं. It implies that he will purchase more only when the price of the commodity falls.
और हम लोग ये सिचुएशन में भी होते हैं कि हम लोग तभी ज्यादा परचेस करते हैं, जैसे मैंने ऑनियन वाला एग्जांपल दिया था, उसमें क्या होता है कि हम लोग तभी कोई चीज की डिमांड करते हैं या ज्यादा उसको कंज्यूम करते हैं, ज्यादा लेके रख लेते हैं जब उसकी प्राइस कम होती है। ठीक है, इनकम भी अफेक्ट करती है, देखते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, purchasing power or a real income of the consumer increases, which enables him to purchase more quantity of the commodity with the same money income. Same money को देकर मतलब क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं, कब? जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होती है तब। ठीक है, आज फॉर एग्जांपल आज अगर कोई चीज हमें 10 रुपीज केजी में मिल रही है, ठीक है, तो हम लोग उसको परचेस कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी परचेस करके रख लिया, जो कल वही क्वांटिटीज और कल 50 रुपीज 60 रुपीज में मिलने वाली है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, जब उसकी प्राइस कम है तभी हमने परचेस करके रख लिया, तो अब क्या होगा, हमारी परचेसिंग पावर, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी परचेस करके हमारे यहाँ पे स्टॉक करके रख सकते हैं, इसलिए हम लोग उस वक्त परचेस कर लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज यू बाय 4 आइसक्रीम्स व्हेन प्राइस ऑफ ईच आइसक्रीम इज रुपीज 25। हमने कितने आइसक्रीम्स लिए? 4 आइसक्रीम्स लिए, जब उसकी प्राइस कितनी थी? 25 रुपीज। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 20, सडनली 20 रुपीज हो जाती है, देन विद सेम मनी इनकम यू कैन बाय 5 आइसक्रीम्स। तो अब इतनी ही प्राइस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, और 20 रुपीज का है तो हम लोग यहाँ पे 4 आइसक्रीम्स लिए, 25 के थे तो हमने 4 लिए। ठीक है, बट अब क्या हो गया, 20 के हो गए, तो हम लोग अब उसमें क्या कर सकते हैं? 5 आइसक्रीम खरीद सकते हैं, कॉमन चीज है। ठीक है, सो ये इनकम भी इस तरीके से अफेक्ट करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स देखे थे हमने, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, जब भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, इट बिकम्स कंपैरेटिवली चीपियर एज कंपेयर्ड टू इट्स सब्स्टिट्यूट। इसके सब्स्टिट्यूट गुड से जब उसकी प्राइस कम होती है तो वो क्या लगता है? चीप, मतलब चीपियर लगता है, कम प्राइस का लगता है। अल्थो द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन चेंज, सब्स्टिट्यूशन की प्राइस चेंज नहीं हुई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टी की प्राइस 10 एंड कॉफी की बात करें हम लोग तो कितनी थी? 15। तो अब फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी भी 15 थी, टी की भी, तो अब इसकी प्राइस 10 हो गई है, तो कॉफी की एज कंपेयर टू कॉफी इसकी प्राइस हमें कम लग रही है। ठीक है, कोई सिचुएशन में अगर देखते हैं कि दोनों की प्राइस अगर 15 है, ठीक है, और आगे जाके इसकी प्राइस टी की 10 होगी, तो हमें इसके कंपैरिजन में ये इसकी प्राइस कम दिखेगी, राइट। तो क्या होगा, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। इसकी वजह से क्या होगा, अब टी का जो डिमांड है वो इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ द कोक एंड पेप्सी, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है ऑलरेडी, लेट्स सी, इफ कोक एंड पेप्सी बोथ आर सोल्ड एट ₹10, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि टी और कॉफी दोनों अगर 15 रुपीस में बिक रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोक 10 रुपीस और पेप्सी दोनों 10 रुपीस का मिल रहा है, एंड प्राइस ऑफ कोक फॉल्स, अब कोक की प्राइस है वो फॉल कम हो जाती है। नाउ कोक हैज बीन बिकम रिलेटिवली चीपर एज विल बी सब्स्टिट्यूट फॉर द पेप्सी, इट विल लीड टू राइज इन द डिमांड फॉर अ कोक। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था कोक और पेप्सी दोनों थे, यहाँ पे इनके पास कोक था और पेप्सी था, पहले दोनों की प्राइस कितनी थी? 10। अब ऐसा हो सकता है कि कोक की जो प्राइस है वो 5 होगी, ठीक है, और अब ये पेप्सी की प्राइस 10 की है, तो हम लोग क्या करेंगे? कोक लेना पसंद करेंगे क्योंकि इट इज जस्ट ओनली फॉर 5 रुपीस। ठीक है, अब वही 10 रुपीस में हम लोग 2 कोक खरीद सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेप्सी आएगी, सो हम लोग प्रेफर करेंगे कोक ही करेंगे। फोर्थ वन इज चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, some old buyers may demand more of the commodity at the reduced price, and some new buyer may also start buying this commodity who were not in the position to buy it earlier due to the higher price. प्राइस जब कम होती है, ज्यादा होती है, तो किस तरीके से अफेक्ट होता है? जब प्राइस, हमें बताया कि when price of the commodity falls, जब कम हुई, ठीक है, some old buyers may demand for the commodity। अब ऐसे बायर्स थे जो पहले ही खरीदते थे, बट अब वो कोई और प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए थे, बट अब जब इसकी प्राइस वापस से कम हो गई है, तो वापस से वो लोग ओल्ड बायर जो है वापस से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं एट द रिड्यूस प्राइस। कब? जब उसकी प्राइस रिड्यूस हो गई है तब। सम न्यू बायर्स में आल्सो स्टार्ट बाइंग, और क्या हो सकता है जब प्राइस कम हो गई तो न्यू बायर्स भी आते हैं,
वही देख के कि भाई इसकी प्राइस कम है, ठीक है, रिलेटिवली कि जब पहले से ज़्यादा थी तो अब कम हो गई, कम और उसे प्रीफर करते हैं। Buying the commodity who were not in the position to buy it earlier, जो उस पोजीशन में नहीं थे कि वो पहले बाय कर सके वो पर्टिकुलर commodity को due to the higher price, because of higher price. This will lead to increase in the number of buyers. इसकी वजह से क्या होगा, number of buyers भी increase होंगे when price of the commodity falls. जब price of the commodity कम हो जाएगी. As a result, demand for the commodity rises when its price falls. Demand for the commodity क्या होगा as a result? राइज होगा बिकॉज के प्राइस फॉल हो गया है, ठीक है। डाइवर्स यूजेस ऑफ कमोडिटी, सम कमोडिटी हैव डाइवर्स यूज लाइक मिल्क, इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, फॉर स्वीट प्रिपरेशन, फॉर आइसक्रीम preparation, etc. The price of milk series, its uses may be restricted to imports purpose only. This will lead to reduction in the demand for the other less important uses. When price of milk falls, it can be put to other uses also, leading to the rise in the demand for it. ठीक है, मतलब ऐसा कभी भी होता है कि मतलब एक कोई चीज़ है, कमोडिटी है, जैसे मैंने बताया कमोडिटी हैव डाइवर्स यूजेस, बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, उसके बहुत अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, स्वीट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, आइसक्रीम्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। द प्राइस ऑफ मिल्क राइसेस, अगर वो प्राइस बढ़ जाते हैं, इट्स यूज मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू इम्पॉर्टेंट पर्पस ओनली, ठीक है। अगर इसके प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो क्या करेंगे, अब हम लोग अगर नॉर्मली रेगुलर पीते हैं तो वो पीना बंद कर देंगे, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ गए तो सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए ही हम लोग उसको करेंगे, मतलब अगर दवाई वगैरह ली है तो इम्पोर्टेंट काम तो पीना जरूरी है, तो वो दूध पी लिया, मतलब मिल्क पी लिया हमने, तो हम लोग स्वीट्स बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे और आइसक्रीम्स बनाने के लिए उसको यूज करना बंद कर देंगे। सो दिस इज हाउ के दिस विल लीड टू द रिडक्शन इन द डिमांड। इस वजह से क्या होगा, डिमांड घट जाएगी फॉर द अदर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस। व्हेन प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स, जब प्राइस कम हो जाएगी, इट कैन बी पुट टू द अदर यूजर्स आल्सो, तो अब क्या होगा, और दूसरे सारे यूजर्स में भी हम लोग इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे और साथ दूसरे अलग अलग एक्टिविटीज में भी दूध का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे जब इसका कम हो जाएगा प्राइस तब। 15.8 exceptions of to the law of demand. We have studied in the law of demand that buyer is willing to buy more quantity of commodity at the lower price and less of it at a higher price. ठीक है, ये चीज हमने पहले देखी। But in certain circumstances, a rise in the price may lead to rise in the demand. ठीक है, कभी-कभी circumstances में ऐसा भी और देखने मिलता है। These circumstances are called exceptions to the law of demand. Some important exceptions are giffen goods. Giffen goods are special type of inferior goods in which negative income effect stronger than negative substitution effect. Giffen goods do not follow law of demand as their demand rises when their price rises. Example of giffen goods are ज्वार and बाजरा etc. इनमें जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, their demand rises when their price rises. जब उसकी प्राइस बढ़ती है तब उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ये ऐसे होते हैं। उसके एग्जाम्पल दिए हैं, ज्वार एंड बाजरा are two examples of this. Giffen goods उसको बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ inferior goods है, inferior goods भी बोलते हैं, which is negative income effect is stronger than the negative substitution effect. Giffen goods do not follow law of demand. ये law of demand जैसे प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, वो वाला सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है। एग्जाम्पल ऑफ गिवन गुड्स आर ज्वार एंड बाजरा। स्टेटस सिंबल गुड्स, some goods are used by the rich people as status symbols. एग्जाम्पल डायमंड्स है, गोल्ड है, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ये क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स। ये कौन, ज्यादातर रिच पीपल इसको प्रीफर करते हैं। द हायर द प्राइस द हायर विल डिमांड, जितनी प्राइस इसकी ज्यादा है उतनी उसकी डिमांड भी होती है फॉर दिस गुड्स। व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड्स फॉल्स, these goods are no longer looked at such status symbol goods and therefore the demand falls. तो जैसे जैसे इसकी प्राइस
कम हो जाती है तो इसकी इतनी डिमांड नहीं रहती है, ठीक है। अगर गुड्स की फॉल होती है तो गुड्स आर नो लॉन्गर लुक्ड एज स्टेटस, इसको स्टेटस की तरह देखा नहीं जाएगा, सिंबल गुड्स, एंड देयरफॉर द डिमांड फॉल, डिमांड भी कम हो जाती है। उसके बाद है नेसेसिटीज, commodities such as medicine, salt, wheat, etc. do not follow law of demand because we have to purchase them in the minimum required quantity, whatever their price may be. मतलब ये necessities ही है, ये चाहिए ही होते हैं, ठीक है। इनके प्राइस हमको टाइम टू टाइम ये मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, whatever their price may be. इसके प्राइस कितने भी हो, हमें ये बेसिक नीड्स है हमारे, तो ये तो चाहिए ही होता है। मेडिसिन है, ठीक है, कितना भी कॉस्टली हो हमें चाहिए है तो चाहिए ही। सॉल्ट है, वीट है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक नीड्स की चीजें हैं जो हमें रेगुलर डे टू डे लाइफ में इनकी जरूरत पड़ती है। तो इसकी प्राइस जो भी हो हमें इसको परचेस करना ही पड़ता है, राइट। गुड्स एक्सेप्टेड टू बी स्कैर्स when the buyers accept in a scarcity of पर्टिकुलर गुड इन द नियर फ्यूचर, अगर नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि इसका स्कैरसिटी होने वाली मतलब कम पड़ने वाला है, ठीक है, सो क्या करेंगे, दे स्टार्टेड बाइंग मोर एंड मोर दैट गुड इवन इफ देयर प्राइसेस आर राइजिंग। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि जितना हो सके उतना ज्यादा उसको स्टॉक करके रख लो, भले ही इसकी प्राइस अभी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग वॉर, फेमाइन्स एक्सेट्रा, people tend to buy more and more some goods even at a higher price due to the fear of the scarcity in the near future. In near future में उसके अगर मतलब वो कम पड़ने वाला है बिकॉज कि उसका अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ हो और कम पड़ने वाला हो, तो वो क्या करते हैं, पहले से स्टॉक करके रख देते हैं। गुड्स एक्सेप्टेड टू बी स्कैर्स, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। एंड 15.9 the law of demand you have studied that other things remaining same, quantity demanded for commodity is inversely related to its price. Quantity demanded for the commodity inversely related to its price. This is inverse relationship of price and quantity demanded by the individual buyer can also be explained with the help of schedule. Individual demand schedule shows different quantities of commodity demanded by the individual buyer at a different price. ठीक है, आप देखते हैं नीचे such schedule देखते हैं, जैसे price of a apple per kg 90 है, per kg 90 थी, ठीक है। पर वीक में ये पर केजी की 90 थी तो 1 केजी लोगों ने खरीदा। जब उसकी पर केजी 80 हुआ, प्राइस कम हुई, तो लोगों ने 2 केजी खरीदना स्टार्ट किया पर वीक, ठीक है। जब उसकी प्राइस पर केजी 70 होती है तो लोग क्या करते हैं, उसे परचेस करना स्टार्ट कर देते, 3 केजी परचेस करना स्टार्ट किया। जब उसकी प्राइस 60 हुई, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया और उसका यानी कंजम्पशन करना स्टार्ट ज्यादा किया, 4। जब उसकी प्राइस 50 हुई तब लोगों ने और उसको परचेस करना स्टार्ट किया, ज़्यादा 5 हो गया, ठीक है। सो यू कैन सी कि जब 1 केजी खरीदते थे लोग, जब तब इतने भी खा सकते थे, पर तब लोग कम ले रहे थे क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पे अब ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि उसकी प्राइस अब कम हो गई है। The above schedule shows that when the price of apples is 90 per kg, quantity demanded is 1 kg. जब उसकी प्राइस क्या थी, 90 पर केजी थी, तो लोगों ने इसको 1 केजी ही प्रेफर किया। But when the price falls to 80, 70, 60 and 50, the quantity demanded increased to 12, 2, 3, 4, 5 kg तक लोग गए उसको परचेस करेंगे per week. So the demand schedule is tabular statement of law of demand. Demand schedule shows different quantities of commodity demanded at a different price in the tabular form. Let's see 15.10 individuals demand curve. Demand curve is a diametric presentation of law of demand. If we plot the individual demand schedule on the graph paper, we will get a curve which is called as individual demand curve. Individual demand curve shows, जैसे कि यहाँ पे individual demand curve हमें दिया हुआ है, quantity demanded है हमारे पास, ठीक है, उसके साथ price of per kg दी हुई है। As in the diagram, price is taken as a y-axis, quantity demanded as x-axis. Point A, B, C, E, F. Point A, B, C, F represents 5 combination of prices and quantity demanded of apples given in the table 15.2
ठीक है। फिर उसमें ए जो है शोज दैट द प्राइस ऑफ ₹90, ठीक है, उसकी प्राइस क्या थी 90, ए जो है उसकी प्राइस 90 है, ठीक है, 90 पे पर केजी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एप्पल इज 1 केजी। उस वक्त कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है 1 केजी है, ठीक है, 1 केजी है जब उसकी प्राइस 90 थी। उसके बाद हुआ पॉइंट बी शोज दैट द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इज 2 केजी पर वीक व्हेन द प्राइस ऑफ 80। अब लोगों ने उसको प्राइस इसकी जब 90 हुई 80 हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो बढ़ी 2 हो गई, ठीक है। तो पॉइंट बी, ए बी सी डी एंड ई, आप समझ सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ ही है, ऑलरेडी मेंशन किया नहीं है तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ए बी सी इस हिसाब से, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही थी, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही थी वैसे वैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी। ये चीज हमें डी डी इस डिमांड कर्व से देखने को मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। As explained earlier, market demand is a total quantity of commodity that all the buyers taken together are willing to buy at a given price during a given period of time. ये हमने पहले भी देखा था। Market demand is a total quantity of a commodity that all the buyers taken together will willing to buy given price during a given period of time. From the individual demand schedule of commodity, we can prepare the market demand schedule of the commodity. We assume that there are only 3 buyers, A, B, and C of apples in the market. The demand schedule of these buyers are, यहाँ पे देखते हैं, price of apple, price दे रखी है, A, B, C, मतलब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द एप्पल्स पर वीक, ठीक है, अलग अलग बायर्स के थ्रू A, B, C, मार्केट डिमांड्स एप्पल्स पर वीक, ठीक है, इन केजीज दे रखी है। इसने 132, इसने इतनी केजीज खरीदे 132, टोटल इसका हुआ 6, इसने 253 इसका टोटल हुआ 10। इस हिसाब से इतने प्राइस पे इतने अलग अलग बायर्स ने इतनी परचेस की रही, टोटल मार्केट डिमांड जो है वो हमें यहाँ पे पता चल रही है। तो 1, 3 और 2 6, तो ये इसका टोटल 6, इसका 10, इसका 14, इसका 18 और इसका 22। इस हिसाब से क्या हुआ कि ये टोटल हमें मार्केट डिमांड पता चल रही है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी मार्केट डिमांड है ये कमोडिटी के लिए, एप्पल्स के लिए, ठीक है। When the price of apple is 90 per kg, the demand is 1 kg, ठीक है, 1 kg of apples, B demands 3 kg, B ने 3 kg किया और इसने 2 kg किया। इस हिसाब से of the apples, the market demand for the apples at the price of 90 is 1326, ठीक है। जब इसकी प्राइस 90 थी तब इसकी टोटल डिमांड थी 6, जैसे हमने पहले बोला वैसे। फिर जब इसकी कम होके अपने 70 पे आती है तब इसकी डिमांड कितनी रहती है 14 रहती है, मार्केट में बढ़ती है। और जब इसकी प्राइस और कम होती है तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, 20 पे आ जाती है, ठीक है। दिस इज हाउ the price affects the demand, market demand, ये market demand चल रहा है, market demand curve। In the figure 15.3, F, G, H, I and J shows the quantity demanded for the apples per week in the market as each of the price given in the schedule 15.3। यहाँ पे दिया है quantity demanded, price, ठीक है। Point F shows that the market demand per week of apples is 6 kg. When the price of apples is 90 per kg, similarly the other combinations of price quantity demanded for the apples at a given table 15.3 are shown as a point G, H and I, J. By joining these points, market demand C curves for the apples can be obtained. Thus, market demand curve is a horizontal summation of individual demand curve. Horizontal है, ठीक है ये। जैसे कि 90 थी तो 6, फिर 80 हुई तो ये 9 एंड समथिंग यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब 70 हुई तब यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे 14, 13 कुछ है, उसके बाद 13, 14 के टाइम का है ये 14, 6
60 हुई तो और 18 हो गई, 50 हुई तब जाके 21 सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट की देखने मिली। ये जो लाइन है पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिमांड कर्व देखने मिल रहा है, ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट्स। 15.3 movement along the demand curve, change in the quantity demanded. And the law of demand, you have already studied the inverse relationship between price and quantity demanded. When quantity demanded for the commodity changes due to the changes in the price, keeping other factor constant, it is called changes in the quantity demanded. It's graphically expressed in the movement along with the same demand curve. Same demand curve में हमने देखा, right? When the quantity demanded for the commodity changes, ठीक है, जब भी चेंज होती है ड्यू टू इट्स चेंज इन प्राइस में चेंज होने की वजह से, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इट्स अ ग्राफिकल एक्सप्रेस, हमने देख लिया था। there can be either a downward movement or an upward movement along same demand curve. Upward movement along the same demand curve is called concentration of demand or decrease in the quantity demanded, ठीक है। Upward movement along with the same demand curve is called contraction of demand or decrease in the quantity demanded. And downward movement जो है ये upward था, ठीक है, और जो downward movement है, movement along with the same demand curve is known as expansion of demand. इसकी वजह से क्या होता है? expansion होता है, और यहाँ पे decrease था, कम होना है। expansion of demand or increase in the demand in the quantity demanded. This can be better explained with the help of figure 15.3. ये है जैसे, ठीक है, quantity demanded है और price है। Let's see, a fall in the price from OP to P1 leads to increase in the quantity demanded from OQ to OQ1. ये है OP to OP1, OP से OP1 तक का जो है leads to increase in the quantity. ये quantity increase कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो quantity है ये increase कर रहा है। Demanded for the OQ से OQ1, OP से OP1 और OQ से OQ1, expansion of demand। यहाँ पे क्या हो रहा है? expansion of demand, डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, resulting in the downward movement from point A to B, point A से B downward movement हो रहा है, ठीक है। सेम डिमांड कर्व DD, ये डिमांड कर्व सेम डिमांड कर्व है, तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से ये, तो इसमें ये डाउनवर्ड मूवमेंट में दिखने मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, दिस वन A and B वाला, where was it? A to point B along with the same demand curve DD। उसके बाद देखते हैं when the price rises from OP to OP2, यहाँ पे देखते हैं OP से OP2, ठीक है, and quantity demand falls from OQ to OQ2, OQ to OQ2। अब यहाँ पे बढ़ता है, OP से P2 पे जाता है, यहाँ पे OQ से Q2 पे आता है, कम हो रहा है, ठीक है। Contraction of demand देखने मिला, leading to the upward movement from the point A to C along with the same demand curve D। अब यहाँ पे क्या upward देखने मिलेगा, AC, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे आया, पीछे आया, तो ये CA वाला मतलब upward side देखा हमने और downward side देखा। Expansion of demand and contraction of demand can also be explained through the demand schedule। देखते हैं price of apples, ये expansion of demand है 70, 60 and 50। तो 70 पे 3, उसके बाद 4, तो यहाँ पे प्राइस दी हुई है 70 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड 3 थी, जब उसकी प्राइस घटी 60 हुई तो उसकी डिमांड बढ़ी 4, उसकी प्राइस और कम हुई 50 तो उसकी डिमांड और बढ़ी 5। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन लिखा है। जब उस 70 थी तो 70 से उसकी डिमांड कितनी थी? 3 थी, और जब उसकी प्राइस घटी तो उसकी डिमांड भी यहाँ पे घट रही, क्वांटिटी डिमांड फैक्टर्स 2। जब उसकी डिमांड और मतलब प्राइस और बढ़ी तो उसकी डिमांड और घटी, ठीक है। सो 70, 80 एंड 90 इस तरीके से प्राइस राइज हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, 3 to 1 पे आ रहा है।
Shifting demand curve changes in the demand. In the law of demand, all factors of the price of the commodity are assumed to be the constant. Price के बिना सारे factors जो होते हैं वो constant होते हैं. But what happens when the other factors determining demand changes but the price remains constant? दूसरे साइड जो factors होते हैं वो changes होते हैं और price रहती है constant. When the demand of commodity changes at the same price, it means the change in the due to the changes in any one of the more of the other factors that affects demand. When the demand of the commodity changes due to the change in any factor other than the price के अलावा दूसरे सारे factors के change होने की वजह से अगर demand में change आता है of a commodity, then the price of commodity is known as change in the demand. तो उसको बोलते हैं change in the demand. It is graphically expressed in the shift in the demand. Let's move. Demand curve of a commodity may shift due to the change in the price. Price में change होने की वजह से demand curve change होता है, right? Of a substitution good, change in the price of a complementary goods, change in the income of the buyer, change in the taste and preferences, change in the population, change in the distribution of income, change in the season and weather. इतने सारे different conditions की वजह से ये सारे changes दिखने मिलते हैं. Demand curve of a commodity may shift due to the change in the price of substitution. ठीक है, may change the price of complementary goods, may change in the income of the buyer, may change in the taste and preferences, may change in the population, change in the distribution of income, and change in the season and weather. ये सारे के सारे हमने डिटेल्स पहले भी पढ़े थे, तो ये सब इन सब की वजह से डिमांड कर्व में क्या होता है, शिफ्ट ऊपर नीचे होता रहता है. The shift in the demand curve can explain in the table 15.5 यहाँ पे है. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस है, यहाँ पे सेम इन सारी चीजें इन्होंने समझा के रखी है. लेट्स सी इन डिटेल. You can see 15.5 that the quantity demanded increases from OQ to Q1. OQ to OQ1. OQ से लेकर OQ1 में, ठीक है, at the same price, ये same price पे है. This decrease due to the unfavorable change in the factors other than the price. Price के अलावा के सारे factors में change होने की वजह से ये सारे changes देखने मिल रहे हैं. This is called decrease in the demand. इसकी वजह से क्या देखने मिलता है? Decrease in the demand. Demand में decrease देखने मिलता है. When there is a decrease in the demand curve shifts towards the left. Left में जाता हुआ दिखता है, ठीक है. When quantity demanded increases from OQ to OQ2, it's same price. OQ से लेकर OQ2 पे जाता है. जब यहाँ से हम लोग पहले हमने ये देखा, अब ये देखा, ठीक है, तो ऐसे चेंज होता है. तो क्या होता है? इंक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस के अलावा के सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होने की वजह से. इन द केस ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और ये उसमें इधर में लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा था. इंक्रीज इन द डिमांड एंड डिक्रीज इन द डिमांड कैन आल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. इसमें देखते हैं. इंक्रीज इन द डिमांड, प्राइस जब थी 90, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स इन केजी, तो 190 थी प्राइस, तो 1 केजी, और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एप्पल्स इन 3 केजीज, तो यहाँ पे टेबल 3 में देखने मिला. ये क्वांटिटी डिमांड ऑफ एप्पल्स, इसमें 2, उसमें प्राइस 90 ही है, यहाँ पे 80 होती है, तो वहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, वहाँ पे प्राइस 70 है, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स 3 और यहाँ पे 4. तो इस तरीके से इंक्रीज इन द डिमांड देखने मिलता है. If you study table 15.6, you will find that the price of 90 per kg, quantity of demanded apples rises from 1 to 2 kgs. 1 and 2, ये changes in the price में होने की वजह से ये हमें इतनी increase in the demand देखने मिला 1 and 2 के हिसाब से, ठीक है. Similarly, at all the other price, that quantity demanded of apples is more in the column 3. So this rise in the demand as due to the change in the factor than other than the price of the commodity. ठीक है, जो कॉलम 3 वाला है उसके अंदर चेंजेस है. दिस राइज इज डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस के अलावा चेंजेस अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से. यहाँ पे भी है प्राइस ऑफ द एप्पल्स पर केजी 70 दिया है, 60 है, 50 है. तो इसमें अभी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 2, 4 और 5 इस तरीके से बढ़ा, उसमें प्राइस वहाँ पे कम हुई. इधर भी है 2, 3 and 4. Quantity of apples shown in the column 3 of the table shown fall in the demand. यहाँ पे fall in the demand देखने मिला.
ठीक है, at the same price पे fall in demand is due to the unfavorable changes in the factors other than the price of a commodity. प्राइस के अलावा के साथ दूसरे कमोडिटी अदर फैक्टर्स की वजह से, दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को